हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू लाइक गुड बच्चों। सो टुडेज टॉपिक इज एडजेक्टिव। तो आज कंप्लीट करेंगे बच्चों एडजेक्टिव्स को, कि एडजेक्टिव्स कहाँ पर यूज किए जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी इंग्लिश ग्रामर में। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट एडजेक्टिव्स एंड द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। सो एडजेक्टिव जो है बच्चा हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं और किस तरह से कंपैरिजन किया जाता है उस बेस पर। सो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है बच्चा कि अ वर्ड used with a noun to describe or to point out the person, animal, place or thing with the noun names or to tell the number or quantity is called the adjective. So ऐसे word बच्चा जो noun को describe करते हैं और point out करते हैं कि person, animal, place या thing को, तो ऐसे noun names जो बताते हैं किसी नंबर के बारे में, किसी क्वांटिटी के बारे में, these are called adjectives. So read the following sentences बच्चों. First is the lazy boy was punished. The boy is lazy. So in sentence first में आपने नोटिस किया होगा बच्चा जो adjective lazy word दिया गया है, okay, so is used along with the noun boy as an attribute के रूप में बताया गया है and it is therefore said to be used attributively. In sentence 2 के अंदर the adjective lazy is used to along with the verb is and form part of the predicate. जो पहले verb दिया गया है, verb के साथ दिया गया है lazy word, और उसके बाद जो बाद वाला पार्ट है वो है predicate. So it is therefore said to be used predicatively. Comparison of adjectives. So adjectives का comparison कैसे किया जाता है बच्चा? 3 forms of comparison के लिए बने हैं. First one is positive, second comparative and third is superlative. So we will start from the first one, positive degree बच्चों. An adjective is said to be in the positive form if it is used merely to describe a noun or to make comparisons with other similar nouns. Means adjectives के अंदर ये positive form बताता है किसी को भी describe करना, means यहाँ पर noun को describe करना, make a comparison करना other similar noun के साथ. So for examples, Rohan is gentle boy. Rohan is as gentle as Hari. So this is the positive degree. Second one is comparative degree students. It is the form of an adjective which is used to show the comparative between two nouns. बच्चा यहाँ पर जो भी दो nouns के बीच में compare किया जाता है, this is we use the comparative degree. Like here, Ganesh is wiser than Ramesh and she is more active than her husband. Next one is superlative degree. It is used बच्चों when the comparison is made between more than two nouns. Means दो से ज़्यादा noun के बीच में जब comparison किया जाता है तो हम superlative degree use करते हैं students. Like we use the before the superlative degree of an adjective. For example, in the above example, if there is a third boy, Suresh, who is wiser than both Ganesh as well as Ramesh, so then we will say Suresh is the wisest of the 3 boys. Means 3 बच्चों में से, 3 boys में से सबसे wisest कौन है? सुरेश. तो ये wisest word जो है बच्चा is thus the superlative form of wise. फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म. तो यहाँ पे फॉर्मेशन को देखेंगे बच्चा स्टडी द टेबल्स के थ्रू टू अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. फर्स्ट रूल इज मोस्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द कंपैरेटिव बाय एडिंग ER एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग EST. मीन्स यहाँ पर ER और EST बच्चा, ER जो है वो कंपैरेटिव डिग्री को ऐड करने से बनता है. मीन्स कंपैरेटिव डिग्री अगर आप चाहते हो बनाना, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, देन आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के अंदर ER का यूज करके इजिली उसको अप्लाई कर सकते हैं. बट सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आपको ऐड करना होगा EST को. लाइक यहाँ पर पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बताया गया है विद एग्जांपल. लाइक कैसे आप ER और EST ऐड करते हुए कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री को अप्लाई कर सकते हैं. लाइक क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, यंग, younger, youngest, short, shorter, shortest, tall, taller, tallest. Second rule is adjective ending with E form the comparative by adding R and the superlative by adding ST. तो यहाँ पर बच्चा सेकेंड रूल बताता है जहाँ पर भी
जो आपका मेन एडजेक्टिव है, मीन्स जो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव डिग्री के अंदर अगर लास्ट में कोई वर्ड ई से एंड होता है तो हम कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके अंदर आर को ऐड करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए एंडिंग में एस टी का यूज करते हैं। लाइक एबल, तो एबल में आप देख रहे हो बच्चा लास्ट में क्या वर्ड है, या, ये जो लेटर दिया गया है ये है ई, ओके, और लास्ट में हम आर लगा देंगे, एबल, एबलर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी को ऐड करेंगे, एबलेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, wise, wiser, wisest. Third rule is adjectives ending with y, change the y to I and add er and est. जो भी एडजेक्टिव बच्चा एंड होता है y से, ओके, वर्ड है y, तो आप y को चेंज करना है टू I एंड er ऐड करना है कंपैरेटिव में और est ऐड करेंगे सुपरलेटिव में। लाइक अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, costly, costlier, costliest, heavy, heavier, heaviest. Fourth is adjective with consonant plus vowel plus consonant combinations double the last consonant before adding er and est, like big, bigger, biggest, fat, fatter, fattest, hot, hotter, hottest, sad, sadder, saddest. Next है बच्चा फिफ्थ रूल के अंदर adjective with two और यहाँ पर देखेंगे टू और मोर syllables usually form the comparative by adding more and the superlative by adding most. Like beautiful, more beautiful, यहाँ पर more beautiful लगा के बच्चा more से हम बना सकते हैं comparative degree and most लगाते हुए हम superlative degree को बना सकते हैं। beautiful, more beautiful, most beautiful, like this. careful, more careful, most careful. courageous, more courageous, most courageous. difficult, more difficult, most difficult. magnificent, more magnificent and most magnificent. Sixth rule is some adjective follow none of the above rules. कहीं कहीं में बच्चा ये कोई रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता, लाइक far, further, farther, furthest, farthest, late, later, latest, little, less, lesser, least, much, more, most, many, more, most. It is to be noted that जो यहाँ पर हमने नोट किया बच्चा, पॉइंट नोट करने के लिए जो फादर्स एंड फादर्स वर्ड है आर यूज्ड ओनली विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल, ही कैन रन farthest than you and Chennai is the farthest of Mumbai and Thane from Delhi. Further and furthest are used for all comparisons, in particular with respect to time. They can also be used to distance. For example, his house is further down the road from mine. So यहाँ पर बच्चा नीचे दिखाने के लिए मीन्स यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है डिस्टेंस को शो करने के लिए, पर्टिकुलर वे में टाइम को शो करने के लिए भी. सेकेंड है द फर्देस्ट आई हैव ट्रेवल्ड टू द ईस्ट विद इन इंडिया इन रांची. गोइंग फर्दर बैक इन टाइम वी फाइंड एविडेंस of men behaving like an animal. The furthest that one can push back the invention of the wheels is 6 millennia ago. She won't be helping us any further. Next है elder और eldest word जो होते हैं only when comparing, जब भी बच्चा comparing किया जाता है ages को लेकर within the same family or clan. Note also we can't say elder than. Even for real brothers, sisters, sons and daughters we use older than. For example, my father is the eldest of his sibling. तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चा सिबलिंग के लिए क्या यूज किया जा रहा है, मतलब सिबलिंग को दिखाना है. तब माई सिस्टर इज ओल्डर देन मी बट आई एम ओल्डर देन योर सिस्टर, माई डॉग इज ओल्डर देन योर्स. नेक्स्ट है लिटिल. लिटिल जो वर्ड होता है टू डिस्क्राइब साइज यूजेस लिटर एंड लिटेस्ट यूज किया जाता है फॉर्म द कंपैरिजन के लिए. हाउएवर स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट आर मोर कॉमन है व्हेन इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वांटिटी और अमाउंट. लेस और लिस्ट को यूज करते हैं. सिमिलरली व्हेन अर्ली और लेट के लिए यूज करते हैं डिस्क्राइब टाइम, we use earlier, earliest and later, latest. Former is the opposite of later. These two adjectives don't have any positive or superlative form. Last is an ordinal number. इसका कोई भी बच्चा लेटर की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी उनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता. लास्ट कैसा है, ऑर्डिनल नंबर की तरह यूज किया जाता है. नेक्स्ट है बच्चा बोथ मच. अगर मच की बात की जाए तो मच में विच इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन है एंड मैनी की बात करते हैं तो विच इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है. मच हमेशा यूज होता है बच्चा अनकाउंटेबल नाउन याद रखेंगे और मैनी यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन्स के साथ. हैव द सेम कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव के लिए मोर एंड मोस्ट लगाते हुए.
रीड एंड राइट के अंदर बच्चा चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. शी इज द मोस्ट स्केयर्ड ऑफ ऑल. सेकेंड है माई स्लाइस ऑफ ब्रेड इज थिकर देन योर्स. हिज पब्लिक इमेज इज मोस्ट इंप्रेसिव. टू सेव द मैच आई प्लेड द बेस्ट इनिंग्स. Her room is the coziest of all the rooms in the bungalow. Her role in the play was more important than mine. Your role is funnier than that of any other's character. You have the strongest influence on the management. The pair of scissors is sharper than any other pair. This flight of stairs is steeper than all the others in the building. सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर है बच्चा, इसमें अपने अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव्स को इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट द काइंड ऑफ ईच. तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर these are artificial flowers. तो यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बात की जा रही है, तो आपको अंडरलाइन करना है each exercise is to be done. Neither boy was willing to go for hunting. Is there any milk in the pot? Which way will they go? The prison's wall is quite high. None of my sister is at home. Either house will suit us. Little boys sometimes take great pains. Most of the boys like cricket. I have no friends and no hope. She took some books from me many days ago. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स है विद एडजेक्टिव और इसमें अपोजिट लिखना है. अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स इन ब्रैकेट. इट इज वेरी डैश न्यूज गुड. तो गुड का अपोजिट बैड, वेरी गुड. द कॉफी इज डैश हॉट. तो हॉट का अपोजिट लिखना है. द वुल्फ इज अ डैश एनिमल, टेम. द ग्रेप्स आर डैश स्वीट. द ओल्ड मैन वॉक्स डैश फास्ट का अपोजिट. ही लाइक्स टू ईट डैश फूड स्टिल. आई एम डैश टू माई कलीग्स इन ऑफिस जूनियर. तो इस तरह से बच्चा जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है, जितने भी हमने एडजेक्टिव किए हैं उन पर बेस्ड, ताकि एडजेक्टिव को डिग्रीज के बेस पर कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं विद फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. और यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइज विच इज related to this chapter. Do yourself, students.